afternoon, dear class 7 students. Once again, after a short gap, welcome back in the English class. And I hope you have utilized that duration in a very proper way, listening all the videos and doing all the activities properly. Now, dear student, as we have to continue our chapters, so today we are going to start our chapter 7, that is never. Student, as you all know, what is never? Never, we can say padosi in Hindi. Neighbors means the person living next door. It means the family that lives next to our families. Neighbors, they may be good or they may be bad, but neighbors, as they are the part of the colony, part of the society, in the time of trouble, in the time of adversity, they will forget each and everything and they will help their neighbors. Now, dear student, here also the same situation is going on. Incident that is happening to a little girl and an old man. यहाँ पर भी एक ऐसा ही एक घटना है जो प्राय विलेजेस में, रूरल एरियाज में, जो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होता है, उस एरिया में ये ऐसा घटना घटता है जहाँ पे रॉबर्स थी, मतलब कोई गैंग घर में घुस जाता है और वहाँ पे तोड़ फोड़ कर देता है और सामान लूटने की कोशिश करता है। यहाँ पे नेवर ही, यहाँ नेवर जो उस लड़की, छोटी सी लड़की का नेवर जो था, तू कहता है, वो ये लड़की का फैमिली, दादा और ये लड़की को रेस्क्यू करता है, बचाता है वो गैंग ऑफ पीपल, गैंग ऑफ रॉबर्स के हाथ से. So let us go through the lesson. What different tests we can find in the story, a short story that usually happens in our country. So now let us read the let us read the short story, and let us first of all read what is there inside the box. If it is visible on your screen, it is good. If you have got the book, that is also better. And I would like to give you a message also. The book is available in the book. You can get it from the office so that you may not get trouble while listening the video. If you are with the book, then it will be better to understand what we are teaching you. Now let us look at the box. Never. It is an English short story written by Sigrun Srivastava. It is an Indian family story that shows some mystery. The girl heard them come towards the house. She was scared. She knew that her old grandfather could not protect her. Now यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआती दिया है ये सिग्रुन श्रीवास्तव. I have already given you the information about her. आप लोग शायद नोट भी बनाया होगा सिग्रुन श्रीवास्तव के बारे में. So you must prepare that note so that you may know more about the writer. Now यहाँ पे शुरुआती, it is a mystery, a short mystery story where a girl is attacked by a gang of robbers. And उस टाइम वो लड़की को लगता है कि उसका जो old grandfather, he is not capable, अथवा he will not be able to protect her from those people. उसको मालूम, लड़की को मालूम था मेरा ग्रैंडफादर बहुत वीक है, ओल्ड एज का है, वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो शी वाज स्केयर्ड, बहुत डरा हुआ था. नाउ लेट अस मूव paragraph by paragraph so that you may understand properly. The voice came towards the bedroom. The door was kicked open and
silhouetted against the drawing room light stood a tall young man. Now यहाँ पे the voice came closer. The voice came closer. जो आवाज आ रहा था बाहर में, घर के बाहर में, वो आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रहा था. द डोर वॉज किक्ड ओपन. डोर, जो दरवाजा था उसको लात से मार के उसको खोल दिया. एंड सिल्यूटेड, सिल्यूटेड का मतलब होता है छाया चित्र, आकृति, कोई भी चीज का छाया देखना. अगेंस्ट द ड्राइंग रूम लाइट स्टूड अ टॉल यंग मैन. एक बहुत लंबा सा आदमी का वहां पे छाया चित्र वॉल में देखा गया था, ड्राइंग रूम के वॉल में, बिकॉज ऑफ द लाइट, प्रकाश के कारण. टू द नेबर्स सन. He switched on the torch. Its beam surged through the dark room. It crept over the floor and under the bed. It zigzagged over the wall and towards the window, glided down the curtains and traveled on. The young man took a step forward, then another. He did not speak a word, but the girl could hear his heavy breathing as he advanced closer and closer. ना जो वो टॉल यंग मैन का जो छाया वहां पे ड्राइंग रूम में देखा था, जो छोटा सा लड़की ने, वो किसका था? तूतू का था, जो वो लड़की का नेबो था. वो अंदर, घर के अंदर आया था. तो उसने अपना टॉर्च को स्विच किया. उसने घर के अंदर ढूंढने लगा. शायद वो लड़की को अथवा ग्रैंडफादर, ओल्ड मैन को ढूंढ रहा होगा. वो इधर उधर करके सब जगह ढूंढ रहा था. और वो लंबी सी सांस थी, एकदम भारी सी सांस वो ले रहा था. एंड एज ही एडवांस क्लोजर एंड क्लोजर, अब लड़की, जो छोटी सी लड़की था, और ये जो ग्रैंडफादर था, उसके नजदीक वो पहुंच रहा था, लंबा लंबा एकदम भारी सा सांस लेते हुए. बट ही वॉज नॉट टेकिंग आउट हिज वॉइस. वो आवाज नहीं निकल रहा था. शायद आवाज निकालता तो कुछ पता चलता. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट. द फ्लोर अंडर the floor under the bed. Let us see now. Advance closer and closer. Behind her, the girl felt her grandfather fighting off another coughing fit. Not now, grandfather, not now, she prayed. Now here, जब ये सब कुछ उस रूम में, ड्राइंग रूम में चल रहा था, तो उस टाइम उसका ग्रैंडफादर तो बेचारा क्या था, बूढ़ा था. वो कॉफ करता था, खांसी लेता था. तो उस टाइम पे भी जब ये तू सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था सब जगह, तो उस टाइम पे भी उसका ग्रैंडफादर को कॉफ आया. तो उस टाइम लड़की ने प्रार्थना किया कि मेरा ग्रैंडफादर को खांसी ना आए. सो शी प्रेड. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट. This is also the same. Okay, this is the picture. You can see it there. Tutu is behind the small girl, and the grandfather, he is sitting and he is hiding behind the cupboard. And it is all the pictures of the drawing room. You can see there what is the situation going on in that house. What is happening to the small family of a little girl. Now let us move to another paragraph. What happens now? Let us see. The old man pressed his hand over his mouth. The old man pressed his hand over his mouth in an attempt to choke off the rasping sound, but in vain. But in vain. Now, let us see. जब बच्ची बहुत प्रार्थना कर रहा था कि मेरा ग्रैंडफादर को खांसी ना आए, उस टाइम ओल्ड मैन भी क्या कर रहा था, अपने आप को खांसी रोकने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था. जो उसका अंदर से दम घुट रहा था कि खांसी का, मुंह पे वो अपने हाथ रख के उसको क्या करना चाहता था, उसको रोकना चाहता था. बट व्हाट हैपन, आवाज तो थोड़ा बहुत निकल ही रहा था, बट इन वेन.
इन वेन हवा में मतलब उसका कोई असर नहीं हुआ। जो ग्रैंडफादर अपना कॉफ को रोकने के लिए कोशिश कर रहा था, अपने मुंह पे हाथ रख के उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काम नहीं किया। द young man heard him. He spun around and focused the beam on the old man's face. Now, जब ये हुआ तो आवाज तो निकल रहा था, बेचारा ग्रैंडफादर तो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी हाथ मुंह पे रख के वो जो खांसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज तो बाहर निकल रहा था। यही आवाज वो यंग मैन जो उन लोगों को ढूंढ रहा था, वो यंग मैन ने उस आवाज को सुन लिया। एंड ही टॉस्ड, अपना लाइट उन 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 लोगों की तरफ दिखा दिया। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। Blinded by the sudden light, the old man shielded his face with his arms, coughing pitifully all the while. Shrinking away from the intruder, the girl stared unbelievingly at him. Now, what happened? जब पता चल ही गया तो उस टाइम वो जो पर्सन टॉल मैन था तू उसने लाइट किया। तो उस टाइम जब लाइट का जो किरण वो ओल्ड मैन के चेहरे पे पड़ा तो उस टाइम वो देख नहीं पाया, इसलिए अपना चेहरा ब्लॉक किया। सील का मतलब होता है अपना हाथ को ढाल बना के उस प्रकाश को रोकना। प्रकाश को उसने रोक लिया। एंड ही वॉज स्टिल कॉफिंग पिटीफुल्ली। बेचारा बूढ़ा था तो खांसी तो उसका आ ही रहा था। ही कुड नॉट स्टॉप इट। And what happened is that when that person came closer and closer, shrinking का मतलब होता है to come closer. Sorry, all the while shrinking away from the intruder, the girls stared unbelievingly at him. जब ये जो intruder का मतलब होता है a person that enters the place without any permission. कोई आदेश के अनुमति के बिना जो अंदर घुस जाता है उसको इंट्रूडर कहता है। तो इंट्रूडर से बचने के लिए वो दूर दूर जा रहे थे वो लड़की। तो उस टाइम उसने उसका चेहरा देखा होगा, शायद कुछ भी देखा होगा। जब उसने देखा तो लड़की को विश्वास नहीं हुआ। अनबिलीविंगली एट हिम, वो देख रहा था वो आदमी को कि अनबिलीविंगली वो उसके चेहरे पे अथवा उसके ऊपर देख रहा था। नाउ लेट अस सी मूव टू अनदर पैराग्राफ। Tutu, Tutu, she whispered. Hot angry tears sprang into her eyes, and before she knew what she was doing, she was out of the hiding place and hovering at his chest with her small fist. Leave my grandfather alone, leave him alone, she sobbed. Now लड़की ने पहचान लिया कि वो अपना नेवर था, नेवर का सन था तुतु। तो उस टाइम उसको गुस्सा आया, लड़की को गुस्सा आया। वो दौड़ के चला गया तुतु के जो चेस्ट छाती में अपना छोटा सा एक मुट्ठी, जो लड़की का मुट्ठी कितना होता है वो गुस्सा उसके हेल्प से उसके चेस्ट में मारने लगा। हैमरिंग का मतलब होता है हम लोग जैसे हैमर से मारते हैं, पीटते हैं। तो उस टाइम उस स्थिति को हम लोग हैमरिंग बोलते हैं। तो उस लड़की ने भी अपना छोटा सा मुट्ठी से उसको चेस्ट में मारने लगा और कहने लगा मेरा ग्रैंडफादर को छोड़ दो, मेरा ग्रैंडफादर को छोड़ दो। और वो रो भी रहा था। सोफ्ट का मतलब होता है रोना, वो रो रही थी। दिस इज द पिटीफुल सिचुएशन। नाउ with a swift movement of his arm, the young man caught the struggling girl and clamped a tight hand over her mouth. Then he kicked at furniture, overturned the cot, and smashed the lamp. Now, यहाँ पे जब लड़की चेस्ट पे मार रहा था, उसने लड़की को जल्दी से उसको पकड़ लिया। स्ट्रगलिंग का मतलब होता है लड़ते हुए लड़की को उसने पकड़ लिया। यहाँ पे क्लैम, CLAM, क्लैम जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु अथवा आदमी को कस के पकड़ना। तो यहाँ पे लड़की को उसने कस के पकड़ा और उसके मुंह पे हाथ रख दिया एकदम टाइट। और उसने उसके बाद में क्या किया, ही किक्ड एट द फर्नीचर जो रखा हुआ था, कोई भी बेंचेस अथवा कोई भी वहाँ पे
वो सब चीज को वो लात मारना शुरू किया। ओवरटर्न द कॉट। ओवरटर्न द कॉट का मतलब होता है कॉट स्पर्म, बच्चे का पालना अथवा बच्चे का बेड ही कहिए, उसको उसने क्या किया, ओवरटर्न कर दिया, उल्टा कर दिया। एंड स्मैश द लैम्प, लैम्प को उसने तोड़ दिया, चोर चोर करके उसने उसको फेंक दिया होगा, तो वो टूट गया होगा। सो उसने ये एक्टिविटी किया आफ्टर ब्लॉकिंग द वॉइस अथवा माउथ ऑफ द स्मॉल गर्ल। स्मॉल गर्ल को पहले उसने अपने पंजे में लिया और उसको टाइट से मुंह बंद कर दिया, और ये सब एक्टिविटीज उसने किया। अब ये एक्टिविटीज क्यों किया हम लोग देखते हैं। Drawn by the noise and turmoil, two men appeared in the doorway. What is happening? One of them roared, "Have you got them?" Now यहाँ पे जो तुतु जो ये स्मैशिंग कर रहा था और ये जो तोड़फोड़ कर रहा था, ये टर्मोइल, खलबली, टर्मोइल, ड्रॉन बाय द नॉइज एंड टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है एकदम खलबली, टू प्रोड्यूस अ ग्रेट नॉइज दैट इज कंफ्यूजन, दैट इज कंफ्यूजिंग। टर्मोइल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारा आवाज टूटू ने निकाला था, तो वहाँ पे दो आदमी डोर हुए अथवा जो दरवाजा के वहाँ दिखाई दिया, और उन लोगों ने पूछा क्या हो रहा है, और तुमने वो उन लोगों को पकड़ लिया, ऐसे करके वो दो आदमी ने पूछा टूटू को। नाउ लेट अस सी। The girl held her breath, going limp in the young man's arm. With his back to the door, Tutu shouted over his shoulder, "Nobody here! Get upstairs quick! They must be upstairs, the cowards!" He kicked the steel trunk with full force towards the door. Now, यहाँ पे शायद हम लोग अभी पता चलना शुरू कर दिया कि टूटू यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है बचाने के लिए, वो बच्ची और ग्रैंडफादर को बचाने के लिए वो एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे जो द गर्ल हेल्ड हर ब्रेथ, अब बच्ची ने भी अपना सांस बंद कर दिया, सांस जोर जोर से फिर जो ले रहा था उसको बंद कर दिया। गोइंग लिम्प इनटू द यंग मैंस आर्म्स। यहाँ पे लिम्प का मतलब होता है अशक्त। अब इतना बड़ा आदमी जो बल लगा रहा था, तो इतना छोटी बच्ची का शक्ति कोई काम करेगा वहाँ, वो अशक्त था। विथ इज बैक टू द डोर, टू शाउटेड। अब उस टाइम उसने क्या किया, उस दो आदमी को आवाज दिया, नोबडी इज हियर, कोई भी नहीं है, तुम कवार्ड्स। कवार्ड्स का मतलब यहाँ होता है डरने वाला इंसान अथवा जो डरता है। ऐसे करके उसने उन लोगों को उल्टा झपटा, उन लोगों को आदेश दिया, ऊपर जाओ, ऊपर शायद मिलेगा, गो अपस्टेयर्स। और उसी के साथ साथ, आवाज के साथ साथ उसने एक एक्शन भी दिखा दिया, वो था स्टील ट्रंक को लात मारना, एकदम जोर से, एकदम फुल फोर्स के साथ उसने स्टील ट्रंक तो मालूम ही है, बक्स जहाँ पे हम लोग कपड़ा वपड़ा रखते हैं, स्टील ट्रंक को उसने लात मार दिया। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। The two men jumped back as the trunk hurled towards them, turned and rushed up the stairs. Now, यहाँ पे जब ये एक्शन जो तुतु ने किया, ट्रंक को लात मारना था, उसको फोर्सफुल्ली उसको पुश करके फेंक दिया था, और ये जाके कहाँ, हर्ल का मतलब होता है जाके गिरना, और ये जाके उन दो आदमी के आगे गिरा, तो वो लोग घबरा गए होंगे। सो दे रस्ट अप स्टेयर, वो जल्दी जल्दी ऊपर चला गया। The moment they were gone, the young man released the pressure around the girl's shoulder and whispered in her ear. अब जब ये दो आदमी ऊपर चला गया था, उस टाइम तुतु ने अपना हाथ निकाल दिया छोटी सी लड़की के मुंह से, और कुछ कहना जा रहा था। वो क्या था हम लोग पढ़ेंगे। Listen to me with care, princess. You must get out of here as fast as you can. Climb through the window and get into the service lane through the rear door. Now rear का मतलब होता है पीछे वाला। अब यहाँ पे उसने कान में थोड़ा सा विस्पर किया। विस्पर का मतलब होता है हल्का आवाज निकाल के बात करना। बच्चे के कान में कहा, एक छोटी सी लड़की, प्रिंसेस, राजकुमारी,
तुम यहाँ से क्या करना है, पीछे के दरवाजे से निकल के, सर्विस लाइन का मतलब होता है छोटा सा एरिया जहाँ पे जहाँ पे फैमिली अथवा कुछ सामान रखते हैं, अथवा वहाँ से इधर उधर पीछे का हम लोग इसको पीछे का रास्ता भी बोल सकते हैं, वहाँ जाए। वहाँ से तुम क्या करना है, पीछे के दरवाजा खोल के तुम्हें भागना है। ऐसे करके तूने छोटी सी लड़की के कान में आवाज दी। फास्ट गर्ल, गेट गोइंग, माई मदर इज वेटिंग फॉर यू, आवर बैक डोर इज ओपन नाउ। तूने ये भी कहा, जल्दी करो बच्ची, मेरा मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मेरा घर का जो पीछे का दरवाजा है वो भी खुला है, उसके अंदर तुम जा सकते हो। ऐसे करके तूने बच्ची को कहा कान में। नाउ लेट अस सी। Tutu, oh Tutu, cried the girl. Tutu, but you, what will happen to grandfather? अब यहाँ पे बेचारा बच्ची, she loved her grandfather very dearly. So she was every time thinking about the grandfather, क्योंकि grandfather ना दौड़ सकता था, ना उसके पास बल था लड़ने के लिए. So uh, she was getting tension about her grandfather. तो इसी टाइम तो तुतु को कहा, तू व्हाट विल हैपन टू माय ग्रैंडफादर, मेरा ग्रैंडफादर को क्या होगा, मेरा दादाजी को। ऐसे करके उसने क्वेश्चन किया। आई विल टेक केयर ऑफ हिम, गो नाउ गर्ल, रन, द यंग मैन अर्ज्ड her and lifted her over the window sill. Run for your life. Now, तूतू ने भी उस टाइम झट से जवाब दिया, ठीक है कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर को क्या करूंगा, ध्यान रखूंगा, ग्रैंडफादर को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसे करके अर्ज का मतलब होता है बाध्य करना। बच्चे को बाध्य करके उसको उठा लिया और विंडो सील तो आप लोग मालूम है, खिड़की का नीचे का भाग जो सील बनाया होता है विंडो का, ऊपर नीचे दायां बायां जो सील, उसको उस तक वो उठा दिया। और अब क्या होता है, रन फॉर योर लाइफ, अपना जीवन के लिए तुम भाग जाओ। अब लेट अस सी व्हाट हैपेंड। With a soft thud, the girl landed safely on the ground and was over at the back door in a second. She opened the door and stepped into the service lane. Behind her, she could hear the mob rampage through the room. She stopped in her tracks. Now, with a soft thud, thud का मतलब ये आवाज होता है, एकदम हल्का सा आवाज। आवाज लड़की जब विंडो सिल से नीचे ग्राउंड में जंप किया तो उस टाइम हल्का सा आवाज निकाल के वो लैंड हुआ। वो दौड़ के चला गया और पीछे पीछे वाला जो डोर था उसको डोर उसने ओपन कर लिया एंड वो सर्विस लाइन तक पहुंच गई। बिहाइंड हर शी कुड हियर द मॉब रैम्पेज। मॉब का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल अथवा क्राउडेड पीपल। रैम्पेज का मतलब होता है विध्वंस, हिंसक, अथवा हम लोग कहते हैं ना दंगा। ये ग्रुप ऑफ पीपल जो हल्ला कर रहा था, दंगा कर रहा था। दंगा मतलब वहां पे तोड़ फोड़ कर रहा था, ओके, रूम में। अब ये सब सुन के बच्ची अपना ट्रैक, जो दौड़ने वाला ट्रैक था, उसको थोड़ा वो क्या किया, वहां पे वो स्टॉप हो गया, रुक गई। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट अस सी। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, व्हाट वुड हैपन टू माय ग्रैंडफादर। अब वो प्रश्न करने लग गया खुद को कि ग्रैंडफादर, मेरा दादाजी, दादाजी को क्या होगा अब। There are lots of people. They may kill him. They may beat him. My grandfather is very weak. He cannot fight. He cannot run. So what would happen to my grandfather? मेरे grandfather को क्या होगा? चिंतित था लड़की यहाँ। She could not leave him, could she? But Tutu's words hammered inside her head. Run, girl, run for your life. अब यहाँ पे बच्ची अपना ग्रैंडफादर को छोड़ने की मन नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तूतू जो बार बार आवाज दे रहा था, बिकॉज ही इज स्टिल एट द विंडो सिल में था, बच्ची को देख रहा था और वो आवाज दे रहा था, अरे रन रन, अपना जीवन बचाने के लिए तुम भाग के जाओ और मेरे घर में चले जाओ, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर को बचा लूंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। इसी करके वो आवाज दे रहा था, बच्ची को एडवाइस दे रहा था। Now, dear students, these were all the paragraphs that we have read today. And as you already know that this
the stories we'll be doing in two portion, that is part A and part B. And today we'll be stopping over here and we will continuing our the story in our group B. So now today, dear student, we'll stop here and I have underlined all the difficult words and the important words that you can see on the screen also. You can see on the paragraph also. So try to learn the spellings of all those words and try to write them in your notebook. So dear student, you have to know the vocabularies, the word power आप लोगों का एकदम पावरफुल होना चाहिए, आप लोगों का वर्ड पावर पढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों को एटलीस्ट 5 वर्ड्स का स्पेलिंग सहित में मीनिंग सहित स्पेलिंग याद करना है आप लोगों को प्रतिदिन, so that your vocabulary, your word power may increase. So dear student, we will stop here. We will meet in another class. Till then, have a nice time. Have a great day. Thank you for listening the videos. Bye bye and take care. Thank you.